Good morning everyone. So today we will discuss about plasma membrane, which is known as guard of the cell. Why it is known as so? So let us discuss the properties due to which it is known as guard of the cell. Plasma membrane is a trilaminar structure. So what is the meaning of trilaminar? Here tri that means three and laminar that means layers. So it is made up of three layers, and out of these three, two are continuous made up of lipid and one discontinuous layer which is made up of protein. And these protein are of two type, one that is the integral protein and second is peripheral protein. So let's correlate these information with a diagram. So here is the ultrastructure of plasma membrane. This ultrastructure means that the plasma membrane is made up of three layers, not a unit membrane. This model is known as fluid mosaic model. And it is given by Singer and Nicholson in 1972. So in this ultrastructure we can easily see the two layers of lipid and one discontinuous layer of protein. The protein which is present across the membrane is known as integral protein, while the protein which is present on the surface of the lipid layer, it is known as peripheral or extinction. Clear? Let us discuss the transport mechanism. There are two types of transport. One is active and second is passive. Active transport means that transport in which energy एक्सपेंडिचर अकर, मतलब एटीपी कंज्यूम होगा और पैसिव में कोई एनर्जी नहीं लगती. ठीक है. सो डिफ्यूजन, इट इज़ अ पैसिव ट्रांसपोर्ट. इट इज़ अ ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. देयर इज़ नो नीड ऑफ सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन. जस्ट इज आपके पास एक बीकर है और इसके अंदर वाटर है, जैसे ही आप इसमें एक कलर डाई डालते हो तो धीरे धीरे वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, बिना एनर्जी लगाए भी वो अपने आप घुल जाएगी. सो दैट इज़ डिफ्यूज़न. अगर आपके पास कोई चीज़ यहाँ पर, मान लो पानी यहाँ पर कहीं हायर उस पर खड़ा है किसी खेत में या फिर टैंक में, अगर वहाँ से होल हो जाता है तो वहाँ से पानी अपने आप आ जाता है, आपको पुश नहीं करना पड़ता. ठीक है. Second is osmosis. It is also a special kind of diffusion in which movement of only solvent or water molecule from lower concentration to higher concentration of the solution. ठीक है. इसमें selectively semi permeable membrane की ज़रूरत पड़ती है. So this is a small note on plasma membrane. Let us discuss the transport. Before discussing about this transport, firstly the need is to discuss about the tonicity of the solution. What is the meaning of this? Let us see. Today our topic is type of solution under the topic of plasma membrane. So we will study about three type of solution. One that is hypertonic solution, hypotonic solution and isotonic solution. So firstly meaning देखते हैं कि क्या ढूंढना है हमको. Hyper that means higher, hypo मतलब कम. सिंपल से क्वेश्चन है, अगर मैं आपको 50 रुपीज दूँ तो वो कम है या ज़्यादा है? ठीक है. अब ये डिपेंड इस चीज़ पे करेगा कि किसके कंपैरिजन में. आपके पास पहले नहीं थे, अब मैंने 50 रुपीज़ दिए, आपके फ्रेंड के पास नहीं है तो आपके पास ज़्यादा है. अगर मैंने आपको 50 रुपीज़ दिया लेकिन आपकी मम्मा ने आपको 100 रुपीज़ दिए तो
But if we do the comparison between A and B, then B is hypotonic than A and A is hypertonic than B. And the same kind A is also hypertonic than C. Suppose that कि अगर मैं यहाँ पर एक और बीकर ले लूँ और उसमें 100 ml वाटर और अब उसमें हम ले लेते हैं 60 ग्राम शुगर, then this is also hypotonic in comparison to this. Clear? So this is the type of solution hypotonic when concentration is higher than the other solution. Hypo जब कम है, iso means that same. Look at this picture here. Hypotonic, that means when solute in the cell is higher than the solute in the solution. So in this case animal cell will swell and burst. ठीक है. Isotonic में stay the same. In hypertonic animal cell shrivel मतलब वो shrink कर जाएगा and plasma जो plant cell है they show plasmolysis. Now what is plasmolysis? Plasmolysis, that means the shrinkage of plasma membrane. Look at this. यहाँ पर आपके पास सेल वॉल एज इट इज़ है, यहाँ भी, बट अंदर देखो यहाँ पर जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी ये यहाँ पर श्रिंक हो गई है. ठीक है, क्योंकि यहाँ से वाटर बाहर जा रहा है और यहाँ पर पानी अंदर की तरफ जा रहा है, इसलिए वो इंक्रीज होता जा रहा है. सो प्लाज्मोलिसिस कब होएगी? जब हम उसको हाइपोटोनिक. दैट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल. यहाँ पे मैंने दोनों का इकट्ठा कंपैरिजन किया आपका पास. तो इसमें एक मैंने शो किए हैं आरबीसी एज एन एनिमल सेल और एक प्लांट सेल. ठीक है, तो इसको अलग अलग में रखा है. सो मैं इसको नेम दे रही हूँ ए, बी एंड सी. सो यहाँ पर देखो आरबीसी ये एज इट इज़ पड़े हुए हैं. यहाँ पर आरबीसी स्वेल कर रहे हैं और यहाँ पे आरबीसी श्रिंक कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर प्लांट सेल एज इट इज़ है, यहाँ पे वो हल्का सा स्वेल किया, वाटर अंदर गया और यहाँ पे प्लाज्मोलिसिस शो कर रही है. तो आपको बताना है कि बी कौन सा सॉल्यूशन है, ए कौन सा सॉल्यूशन है और सी कौन सा सॉल्यूशन है. जिसमें एनर्जी कंजप्शन नहीं होती. जैसे अगर कहीं पर खेत में पानी भरा हुआ है, आप अगर वहाँ से जो खेत में कहीं पे भी उसकी मेल टूट जाए तो पानी अपने आप चला जाएगा. लेकिन अगर पानी कहीं नीचे पे है और आपको ऊपर लेके जाना तो आपकी एनर्जी लगती है. ठीक है, सो डिफ्यूजन इज अ पैसिव प्रोसेस जहाँ वो अपने आप चले जाए. जैसे आप पानी के अंदर इंक डाल दो तो सारे में घुल जाती है, आपको एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, वो अपने आप थोड़ी देर में मिक्स हो जाएगी. ठीक है, सो डिफ्यूजन जो है इट इज अ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. ऑस्मोसिस जो है इसमें क्या रहेगा? मूवमेंट ऑफ ओनली वाटर मॉलिक्यूल. इसमें सॉलिड मूव कर रहे होते हैं मेनली. ठीक है, वाटर भी मूव कर सकते हैं, सभी मूव कर सकते हैं, बट ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट मूव करता है. ठीक है, सो आज हमको बात करनी है मेनली ऑस्मोसिस के बारे में. ऑस्मोसिस के हम दो टाइप पढ़ेंगे. वन दैट इज एक्सोस्मोसिस एंड सेकंड इज एंडोस्मोसिस. सो